students, this is Sunil Gupta from KV number 1 Sagar. This is the class belongs to text file handling. I am going to explain some programs with the help of PyDroid 3 of text file handling. Let's start. Okay. So here we will start from opening a file. If you want to create any file or if you want to open existing file, the same function will be used for both to create the file or to open the file, that is open function. Okay, so the syntax of open function is file variable, whatever the name you may give here. File name I have given file equally to open. This is the method used to open a file. Okay, you can give I am going to create a new file. I am going to create a new file with the help of Python. So my file name is hello.txt. hello.txt. Okay, so this is the syntax to open any file or to create any file. File variable equal to open. In single quotes or double quotes, you can give the new name of the file or existing name of the file. Okay, so the hello.txt file will be created in the root directory where your program is stored. ठीक है, जहाँ आपका प्रोग्राम सेव होता है वहीं पर आपकी फाइल भी क्रिएट होगी. दैट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट पाथ, है ना. एंड आप यदि फाइल को किसी और ड्राइव पे चेंज करना चाहते हैं, ये आप कंप्यूटर में करेंगे लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ. C:\\. ओके, जैसे आपको कोई फोल्डर है माई डॉक, यू कैन राइट हियर माई डॉक एंड दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव पाथ. ठीक है, तो इस टाइप से आप फाइल नेम का कहीं पर भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर आप चाहें. सो मैं डायरेक्ट कहीं पे ये जो पाथ हटा दे रहा हूँ अभी. ये पाथ आप कहाँ पे देंगे, जब आप कंप्यूटर पे क्रिएट करेंगे देन आप पाथ दे सकते हैं. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पाथ, एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ, है ना. सो फिक्स पाथ हम दे रहे हैं. ये कहाँ पर स्टोर होगी फाइल, hello.txt आपकी रूट डायरेक्टरी के अंदर स्टोर्ड होगी. ओके, सो hello.txt file will be created automatically in root directory. So this is the first syntax. Now the second method we used to write something inside the file, that is write method, है ना. So write method and write line method. ठीक है, there are two methods to write something inside the file. So what is the syntax? That is the file object dot write, WRITE, है ना. And you have to put the message, है ना. So whatever you want to write inside the file, you can write the text here. So this is my first file. ये मैंने मैसेज के अंदर लिख दिया. ओके, जो ऊपर जो एक और चीज़ रह गई है, ऊपर जो हमने फाइल खोली है hello.txt, है ना, इसमें हम साथ में फाइल का मोड भी लिखेंगे. यानी फाइल किस मोड में ओपन होगी. मोड मीन्स रीड मोड या राइट मोड, ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका पहले वीडियो में. सो यहाँ पर जो मोड होगा वो होगा राइट मोड, बिकॉज वी आर गोइंग टू राइट समथिंग इनसाइड द फाइल. यदि आपको फाइल को रीड करना है देन यू हैव टू राइट आर मोड. तो ये फाइल ऑटोमेटिकली टेक्स्ट फाइल क्रिएट होगी. ओके, दिस इज़ द फर्स्ट लाइन. आई एम गोइंग टू राइट अनदर लाइन, फाइल डॉट राइट. Okay, and this is second line. This is second line. So I have written two lines inside the file. Now what is the syntax? Next one, if you are going to close a file, now there is another function that is called close. So file dot close. So we have used three methods inside this program. First method is open, to open the file. Second method is write, to write something inside the file. And third method is close. Okay, so always whenever we open the file, it is also necessary to close the file. Okay, now I am going to save this program and this is the last opened. यानी ये जहाँ पर भी मैं प्रोग्राम सेव कर रहा हूँ वहाँ पर मैंने
सेलेक्ट फोल्डर किया और यहाँ पर मैं फाइल का नाम दे रहा हूँ दिस इज फर्स्ट फाइल, है ना, ये मैं इसका नाम दे रहा हूँ फर्स्ट फाइल एंड सेव। तो ये प्रोग्राम हमारा सेव हो गया। अब मैं इसको रन करूँगा तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। दैट मीन्स जो कंटेंट्स हमने लिखे थे वो फाइल के अंदर स्टोर्ड हो गए। अब हम उस फाइल को देखेंगे कैसे? यदि कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट फोल्डर खोल के उस फाइल को देख सकते हैं, hello.txt फाइल बन जाएगी। लेकिन हम इस फाइल को कैसे पढ़ेंगे? प्रोग्राम के थ्रू ही पढ़ेंगे। तो प्रोग्राम के थ्रू पढ़ने के लिए दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं रीड करने के लिए। ये कौन सा प्रोग्राम था? राइट करने के लिए। दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं रीड करने के लिए। तो न्यू प्रोग्राम खोला। अब हमें फिर से वही सेम फाइल, हमारी फाइल का नाम था hello.txt, देन सेम फाइल वी विल ओपन। ओके, देन मैंने फिर से एक ऑब्जेक्ट लिया ऐप। देखिए फाइल लेना ज़रूरी नहीं, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने ऐप दे दिया, ऐप इक्वल टू ओपन एंड what was our file name? That is hello.txt, hello.txt। ओके, नाउ अब हम इसको खोलेंगे रीड मोड में। यदि आप रीड मोड नहीं भी लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये रीड मोड में ही खुलेगी, बट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि इस फाइल को किस मोड में खोलना है, आपको रीड मोड में खोलना है। ओके, फाइल ओपन हो गई रीड मोड में। अब आपको फाइल को रीड करना है, तो रीड करने के लिए 3 फंक्शंस हैं, 3 मेथड्स है। फर्स्ट इज रीड, ओके, सेकेंड वन इज रीड लाइन एंड थर्ड वन इज रीड लाइन्स, है ना। तो हम सबसे पहले रीड मेथड का यूज़ करेंगे, एंटायर कंटेंट्स को रीड करेंगे। सो एफ डॉट रीड, जस्ट एफ डॉट रीड लिखना है और एंटर कर देना है। और जो एफ डॉट रीड है उसे किसी टेक्स्ट के अंदर, किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। तो हमने txt इक्वल टू लिख दिया, txt इक्वल टू रीड, एफ डॉट रीड। तो txt में जो भी कंटेंट्स होंगे वो स्टोर हो जाएंगे। और प्रिंट करा देते हैं इसको, txt को, किसको करा दिया? txt को प्रिंट करा देंगे और फाइल को क्लोज कर देंगे, एफ डॉट क्लोज। हमने वही सेम फाइल खोली जिस फाइल को हमने क्रिएट किया था hello.txt को, एंड टेक्स्ट इक्वल टू एफ डॉट रीड किया, सारे कंटेंट्स को रीड कर दिया, प्रिंट कर दिया। इसको रन करेंगे तो आप देखिए आपको सेम कंटेंट्स मिलेंगे वहाँ पर। कुछ एरर आ रही है, हम इसको देखते हैं कि क्या एरर है। इस प्रोग्राम को पहले सेव करते हैं। इस प्रोग्राम को हमने सेव किया और उसी जगह पे सेव करेंगे, है ना। और यहाँ पर इसका नाम दे दिया हमने रीड फाइल, इसका नेम दे दिया हमने रीड फाइल, रीड फाइल हमने इसका नाम दे दिया। अब हम एक बार फिर से इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए पहले बार एरर क्यों आई? एरर इसलिए आई कि उसे वो पाथ नहीं मिला उस फाइल का। जब हमने इस फाइल को सेव कर दिया तो उसने सेम फोल्डर में उस फाइल को सर्च किया तो वो चीज़ें मिल गई। तो दिस इज़ माय फर्स्ट फाइल एंड दिस इज़ सेकंड लाइन, यही 2 लाइन हमने उसके अंदर लिखी थी, वो लाइन्स हमारी आ गई, है ना। तो रीड का एक यूज़ है कि हम सारे कंटेंट्स को एक साथ कर सकते हैं। ओके, दूसरा रीड का दूसरा तरीका देखिए। यहाँ पर रीड में मैंने कुछ वैल्यू डाल दी, मान लीजिए हमने 10 वैल्यू डाल दी, तो फाइल के फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स ही रीड होंगे, है ना। फाइल डॉट रीड 10 का मतलब है यदि रीड के अंदर कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं करेंगे तो एंटायर फाइल रीड होगी, और यदि फाइल के अंदर कुछ न्यूमेरिक वैल्यू डाल देंगे तो उतने ही टेक्स्ट रीड होंगे जितने की आपने वैल्यू दी है। तो लेट्स स्टार्ट दिस फाइल। देखिए दिस इज माई 4 स्पेस 5 इज टू 7 स्पेस 8 एंड माई 10। तो सिर्फ 10 कैरेक्टर्स ही रीड हुए इस रीड फाइल के अंदर, ठीक है। अब देखिए दूसरा इसका यूज़ सीखते हैं हम रीड लाइंस का, है ना। तो इसको हमने स्टोर कर दिया और सेव कर दिया, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे? सेव कर देते हैं। अब एक तीसरा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें कि एग्जिस्टिंग कंटेंट्स को हमें राइट करना है और भी कुछ चीज़ें ऐड करना है। मान लीजिए उसके अंदर 2 लाइन थी, अब हमें 2 लाइन्स और बढ़ाना है, तो कैसे करें, है ना। तब आपको फाइल के लिए एक तीसरा मोड ओपन करना पड़ेगा, दैट इज़ अपेंड मोड, ए मोड। यदि आप हर बार राइट मोड में ही खोलेंगे तो क्या होगा? प्रीवियस कंटेंट रिमूव हो जाएंगे। अपेंड मोड का मतलब होता है इट विल ऐड मोर कंटेंट्स एट द एंड ऑफ द फाइल विदाउट रिमूविंग द प्रीवियस कंटेंट्स, ठीक है। तो अब आपको यदि कुछ और लिखना है
तो कैसे लिखेंगे, फाइल डॉट राइट। आप टेक्स्ट फाइल के अंदर मैंने पहले बताया था कि न्यू लाइन ऐड कर सकते हैं। तो यदि आपको न्यू लाइन कंटेंट्स ऐड करना है तो कैसे करेंगे, न्यू लाइन कंटेंट्स \n का यूज़ करते हैं एंड दिस इज थर्ड लाइन, ऐसे हम इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, दिस इज आप एक ही साथ लिख सकते हैं बगैर सिंगल कोट्स बंद किए हुए, एंड दिस इज थर्ड लाइन, ये लाइन उसके अंदर जुड़ जाएगी। ठीक है, और इसके बाद आप न्यू लाइन चाहें तो न्यू लाइन लगा सकते हैं इसमें भी, तो एक लाइन फिर से क्रिएट हो जाएगी और मैंने इसको बंद कर दिया। ओके, एक लाइन और जोड़ देते हैं, एंटर एंड फाइल डॉट राइट और ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट्स, दिस इज फोर्थ लाइन। ठीक है, कुछ भी लिख दीजिए, नेक्स्ट लाइन। ठीक, अब हम इस फाइल को रन करेंगे सेव करके, तो क्या होगा, ये हमारे पास अब जो फाइल होगी उसके अंदर बहुत सारे कंटेंट्स जुड़ जाएंगे। ओके, एफ हमारी फाइल का नाम क्या था, एफ, हम इसको ही फाइल लिख देते हैं और या एफ लिख देते हैं सभी जगह, इसको एफ लिखा, सबको एफ लिख देंगे तो हमारे जो एरर है वो नहीं आएगी। ठीक है, फाइल ऑब्जेक्ट का नाम सेम होना चाहिए, सेम कर दिया, सेव कर दिया और रन किया, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, दैट मीन्स फाइल रीड हो गई। अब हम देखिए, अब इस फाइल राइट हो गई, अब हम इस फाइल को रीड करते हैं। तो रीड करने के लिए फिर से अपेंड मोड खोलना पड़ेगा, रीड मोड खोलना होगा। तो हमने रीड मोड खोला, इस फाइल का हमने रीड मोड खोला। रीड मोड के बाद अब हमें इसको रीड करना है, तो मैं एक दूसरा फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, रीड लाइन्स, या बगैर रीड लाइन का यूज़ किए हुए भी हम कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये ओपन फाइल कर ली hello.txt। अब हम एक लूप चला सकते हैं, फॉर लाइन इन एफ, फॉर लाइन इन एफ, और प्रिंट कर दें लाइन को। लाइन ऑटोमेटिकली, लाइन मीन्स वो लाइन रीड कर लेगा, ऑटोमेटिकली रीड हो जाएंगी। अब हम इसको रन करके देखते हैं, है ना, इसको सेव कर लिया, रन करें तो देखिए 1 2 3 है ना, और 2 स्पेस हो गए न्यू लाइन, तो आपकी 3 लाइन्स यहाँ पर दिख रही हैं, है ना। ऊपर की 2 लाइन में न्यू लाइन नहीं दिया था तो वो दोनों लाइन एक में ही हो गई थी। तो इस टाइप से हमने अपेंड मोड का यूज़ किया था, तो हमने एग्जिस्टिंग कंटेंट्स को रिमूव किए बगैर 2 लाइन जोड़ दी थी, और रीड लाइन्स फंक्शन का यूज़ किया है। तो क्या हो गया, ये लूप चलाया तो उससे हमने सारी लाइंस को रीड कर लिया। ओके, मैं इसको क्लोज करके नए तरीके से फिर से रीड करके दिखाता हूँ। इसको मैंने बंद कर दिया, ट्रिपल कोट्स, और इधर भी ट्रिपल कोट्स लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ रीड लाइंस का, है ना। तो रीड लाइंस का यूज कैसे करेंगे, फिर से किसी वेरिएबल में ले लेंगे लाइंस। हमने लिखा लाइंस इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइंस। एफ डॉट रीड लाइंस करेंगे तो सभी लाइंस, जितनी भी लाइंस हैं फाइल के अंदर, वो सभी किस में स्टोर हो गई, लाइंस में। लाइंस क्या हो गई, लाइंस एक लिस्ट हो गई जिसमें हर लाइन एक एक लाइन करके उसके स्ट्रिंग की एलिमेंट्स होंगे। तो अब लिस्ट को रीड कैसे करते हैं, तो हम लिस्ट रीड कर सकते हैं, फॉर ए इन लाइंस, फॉर ए इन लाइंस और प्रिंट ए। तो क्या होगा, तब भी आपको एक एक लाइन रीड करते हुए मिलेगी प्रिंट। इसको रन करें, देखिए तब भी सेम आउटपुट आया जैसा कि हमने पहले आउटपुट दिया था। ठीक है, तो रीड लाइंस का यूज़ सीखा। ऐसे ही रीड लाइन का यूज़ सिखाता हूँ मैं आपको।
ये फिर से मैं बंद कर रहा हूँ इसको, ये बंद किया, एंटर, और इसको भी बंद कर दिया। ठीक है, अब तीसरा फंक्शन यूज़ करते हैं रीड लाइन। तो रीड लाइन रीड करने के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, मान लीजिए x ले लिया, x इक्वल टू f डॉट रीड लाइन। ओके, so which line will be read by the x? the first line will be displayed. okay, जब हम x को प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, only first line will be displayed। तो f डॉट रीड लाइन करेंगे एंड प्रिंट x कर देंगे, देखिए क्या होता है, only first line will be displayed, है ना। नेक्स्ट लाइन करना है तो आगे हम प्रोग्राम्स में सीखेंगे कि कैसे हम लूप लगा के नए प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। क्लियर दैट। सो हमने ओपन का यूज़ सीखा, क्लोज का यूज़ सीखा, रीड का यूज़ सीखा एंड रीड लाइन का यूज़ सीखा। ठीक है, अब मैं आपको आगे सिखाता हूँ। मान लीजिए आपको काउंट करना है कि इसके अंदर कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, इस पूरी फाइल के अंदर कितने अल्फ़ाबेट्स हैं या कितने वॉवेल्स हैं या कितने ए हैं। कोई भी कैरेक्टर काउंट करना है या कोई भी वर्ड काउंट करना है तो आप उसको काउंट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले काउंट करते हैं, हम प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम टू काउंट कैरेक्टर इन ए टेक्स्ट फाइल, है ना। किसका प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम टू काउंट कैरेक्टर इन टेक्स्ट फाइल। तो हमने फाइल ओपन कर ली, फाइल ओपन करने के बाद अब हमें एक काउंटर चाहिए होता है, तो हमने काउंटर ले लिया। जैसे किसी भी चीज़ को काउंट करना हो तो हम काउंटर लेते हैं, एक काउंटर ले लिया। अब आपको लूप चलाना होगा, तो लूप चलाएंगे जैसे फॉर ए इन एफ, है ना, डायरेक्ट। उससे पहले हम रीड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको हटा देते हैं पहले। हाँ, अब आप यहाँ पे लिखें, जैसे हमने लिखा str इक्वल टू एफ डॉट रीड, तो इससे क्या होगा, सारे कंटेंट्स रीड हो जाएंगे। तो हमारी वैल्यू किस में आ गई, str में आ गई। तब हम लूप चलाएंगे फॉर ए इन str। अब काउंट क्या करना है, कैरेक्टर्स काउंट करना है, तो कैरेक्टर्स या अल्फ़ाबेट्स काउंट करना है तो हम एज अल्फ़ा फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे इफ़ ए डॉट एज अल्फ़ा, ए डॉट एज अल्फ़ा, यदि ये है देन क्या होगा, वी विल काउंट, इंक्रीज द काउंटर, सी इक्वल टू सी प्लस 1। ठीक है, इस टाइप से जब ये कंप्लीट लूप होगा तो हम इसको हम प्रिंट कर सकते हैं, किसको, प्रिंट नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स इन फाइल इज, एंड प्रिंट करा दीजिए, किसको प्रिंट करा दें, सी को हम प्रिंट करा सकते हैं ना। तो कैरेक्टर्स की जगह हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, अल्फ़ाबेट्स, है ना। ऐसे ही हम डिजिट प्रिंट करा सकते हैं, ऐसे ही हम अपर केस लेटर्स प्रिंट करा सकते हैं, ऐसे ही हम लोअर केस लेटर्स प्रिंट करा सकते हैं। तो इसको रन करके बताता हूँ मैं। पहले फिर से प्रोग्राम एक बार देख रहे हैं, ओपन हेलो डॉट txt, str इक्वल टू एफ डॉट रीड, काउंटर ले लिया, लूप चलाया, देन ए डॉट एज अल्फ़ा, सी इक्वल टू सी प्लस 1 एंड नंबर। ठीक है, तो इसको रन करते हैं और देखिए इसके अंदर कितने अल्फ़ाबेट्स हो गए, 62 अल्फ़ाबेट्स होंगे, आप उसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो दिस इज योर प्रोग्राम टू काउंट द अल्फ़ाबेट्स इन अ टेक्स्ट फाइल। अब मैं आपको वर्ड काउंट करके दिखाता हूँ। वर्ड काउंट करने के लिए ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को क्या करना होगा, इस प्रोग्राम को रिमूव कर देता हूँ जिससे आपको आसानी रहे। है ना, काउंट वर्ड, प्रोग्राम टू काउंट वर्ड।
वर्ड मीन्स वर्ड्स, सेट ऑफ कैरेक्टर्स, है ना। ओके, सो स्ट्रिंग को हमने रीड किया एफ डॉट रीड, एफ डॉट रीड किया तो सारी स्ट्रिंग आ गई, और इसको हमने स्प्लिट कर देंगे। आपको पता है कि जब स्प्लिट करते हैं तो क्या होता है, ये लिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने लिखा लिस्ट इक्वल टू str डॉट स्प्लिट। स्प्लिट करेंगे तो स्पेसेस क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे, स्पेसेस रिमूव हो जाएंगे। आप उन स्पेसेस को रिमूव करने के बाद आप चाहें तो डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं वर्ड्स को, आप चाहें तो वर्ड्स को प्रिंट करा सकते हैं। सो लिस्ट को अब हम इसको लूप चलाएं, फॉर ए इन एल एस टी। अब आपको काउंट करना है वर्ड्स, तो आप क्या कर सकते हैं, एक काउंटर ले सकते हैं, या स्ट्रिंग की सीधे सीधे लेंथ निकाल सकते हैं, और काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1 कर दें, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, प्रिंट नंबर ऑफ वर्ड्स आर, इसको प्रिंट कराएं सी को, तो क्लोज कर, तो रन करके देखते हैं। तो देयर आर 16 वर्ड्स इन दिस फाइल। आई होप आप सभी को ये फाइल हैंडलिंग, टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम समझ में आ गए होंगे। इनको आप प्रैक्टिस करिए, उसके बाद हम इनको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।